بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ البصیر القدیر وصدق رسولہ البشیر النذیر والحمد للہ رب العالمین۔ لائق صد احترام علماء اہل سنت، قابل قدر سامعین حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسول گرامی وقار، محبوب پروردگار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رتیا سے ہوئی ہے بہان، بھورا ہے ریما جان، سیدنا کا تہر بنا نہیں رتیا سے ہوئی ہے بہان، بھورا ہری مجان، سیدنا کا تہر بنا، رات دینا گھیرے دین کے دشمن، مدد کے لیے آؤ شاہ زمن، بنا تہر سورج لکان، چاندوا بتان، سیدنا کا تہر بنا نہیں رتیا سے ہوئی ہے بہان، بھورا ہری مجان، سیدنا کا تہر بنا۔ درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا، تیری رگوں میں ہے خون رواں چار یار کا۔ ہم نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ داماد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بڑی عظیم شان ہے، بہت فضیلت والے ہیں۔ مولائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلصین کے بھی امام ہیں، حضرت علی متقیوں کے بھی امام ہیں، حضرت علی پرہیزگاروں کے بھی امام ہیں، حضرت علی تمام اولیاء اللہ کے امام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلوص کا حال یہ تھا، آپ کی نیت اس طرح خالص تھی کہ جب تاریخ کا جائزہ لیا جاتا ہے اور مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی سامنے لائی جاتی ہے تو ذہن کو حیرانی ہو جاتی ہے، فکر کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ کتنا خلوص تھا حضرت علی کے اندر، اور کیوں نہ حضرت علی کے اندر خلوص ہو، حضرت مولائے کائنات کا نام ہی علی ہے۔ آج ساری دنیا میں کسی کا نام آپ بگاڑنا چاہیں تو بگاڑ سکتے ہیں، جس کے بھی نام کو آپ الٹ دیں تو اس کا نام الٹ جاتا ہے۔ آپ نے کسی کا نام رکھا ہے زید، آپ نے کہا زید وید، تو زید کا معنی تو سمجھ میں آ گیا، لیکن وید کا مطلب کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ جملہ محمل ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ آپ دنیا کی چیزوں کا نام لے لیں، آپ نے پانی کہا تو آدمی نے سمجھ لیا پانی وہ چیز ہے جو پینے کی چیز ہے، جس سے پیاس بجھتی ہے، لیکن آپ نے جب کہا کہ پانی وانی پی لیا جائے تو پانی سے تو پانی سمجھا جا رہا ہے، لیکن وانی سے کچھ نہیں سمجھا جا رہا ہے، لفظ بولا تو گیا لیکن لفظ کا معنی بیکار ہو گیا۔ آپ نے کہا کھانا وانا
तो खाना का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन वाना का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। मुहावरा है, बोल दिया जाता है। लोग अपने मुहावरे में ये लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं। मुहावरे में एक लफ्ज सही बोला जाता है और दूसरा लफ्ज उलट करके बोल दिया जाता है, तो पहले लफ्ज का माना तो समझ में आ रहा है, लेकिन दूसरा लफ्ज जो उलट करके बोला जा रहा है उसका माना कुछ नहीं होता है, वो मुहम्मल लफ्ज है, वो बेकार है। यूं ही मुहावरे के तौर पर बोल दिया गया है। लेकिन मौलाए कायनात हजरत अली का नाम इतना अच्छा नाम है, हजरत अली का नाम इतना प्यारा नाम है, हजरत अली का नाम इतना अजीम नाम है, हजरत अली का नाम इतना बेहतरीन नाम है, हजरत अली का नाम ऐसा अजमत वाला नाम है, हजरत अली का नाम इतना बरौनक नाम है, हजरत अली का नाम इतना ज़िया वाला नाम है, हजरत अली का नाम इतना बेहतरीन नाम है कि जब हजरत अली का नाम लो और मुहावरे में उलटो तो कहोगे अली वली। अली कह रहे हो तो भी माना बन रहा है, और लफ्ज उलट रहे हो तो वली कह रहे हो तो भी माना बन रहा है। वो हजरत मौलाए कायनात हैं, जिसके नाम को उलट करके बोला जाए तो नाम का माना बेकार नहीं होता, अली का काम भी बेकार नहीं है, हजरत अली की तहरीक भी बेकार नहीं है, हजरत अली की तनवीर भी बेकार नहीं है, हजरत अली का मिशन भी बेकार नहीं है, हजरत अली का ज़ाब्ता और वसूल भी बेकार नहीं है। मौलाए कायनात ने वसूल और ज़ाब्ता क्या मुरत्तब फरमाया है, सिर्फ एक वसूल और एक ज़ाब्ता। आप देखते चलिए हजरत अली ने खुलूस का पैगाम किस तरह से दिया है, हजरत अली ने नियत की सफाई किस तरह से पेश की है। मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने नबी कौनैन की ये हदीस पाक है। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारो मदार नियत पर है। अगर नियत सही है तो उस अमल का सवाब आपको मिलेगा, और अगर नियत सही नहीं है, रिया का मामला है, तो प्यारे रिया के मामले से, दिखावे के मामले से आपको कुछ नहीं हासिल होगा। अब आप बात आ गई है तो मैं अर्ज करता चलूं और आप अपने ज़हन फिक्र को साफ करते हुए चलाएं। आज कुछ लोग कुछ दिखावे के काम किया जाते हैं ताकि मेरी बड़ाई हो, ताकि समाज में मैं बहुत बड़ा समझा जाऊं। ये हमारे और आपके ज़हन फिक्र में बात आती है, खुलूस नहीं पैदा हो पाता है। लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुलूस मुलाहिज़ा फरमाइए। हजरत अली का मुकाबला एक इस्लामी दुश्मन से हुआ। उसने कहा, अली मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। आपकी तलवार का जौहर तो मैदान में देखा गया है, आपका दांव पेश तो जंग करने का मैदान में मुलाहिज़ा किया गया है, लेकिन ए अली मैं आपसे कुश्ती लड़ना चाहता हूं। आप हमको कुश्ती में शिकस्त दे दें, मैं देखना चाहता हूं। मौलाए कायनात ने मंजूर फरमा लिया। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुश्ती होती है। आप जरा मुलाहजा फरमाओ, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुश्ती जैसे हुई, मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दुश्मन इस्लाम को जमीन पर पटक दिया, और जमीन पर पटकने के बाद कहा, अब मैं तेरे साथ वो सुलूक करूंगा जो जंग में किया जाता है। खंजर निकाला और खंजर हजरत अली उसके सीने पर भोंकना चाहते हैं कि तब तक उसने हजरत अली के ऊपर थूक दिया। थूकना था, हजरत मौलाए कायनात ने खंजर को उधर रख दिया, उठ करके खड़े हो गए। वो दुश्मन इस्लाम खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद कहता है, अली आपने कहा क्या बात है? कहा, आपके ऊपर मैंने थूक दिया, आप खंजर निकाल चुके थे, आपने मुझको जमीन पर पटक दिया था, अब तो आपका तैश और बढ़ जाना चाहिए, आपका गुस्सा तो और बढ़ जाना चाहिए। अगर पहले आपने नियत की थी कि खंजर भोंक करके इसको मैं मारूंगा, तो जब मैंने आपके ऊपर थूक दिया है तो आपकी नियत तो और सख्त हो जानी चाहिए कि अब मैं इसको और तरह तरह की सजा दे करके मारूंगा। आप उठ करके खड़े क्यों हो गए? आपने मुझको छोड़ क्यों दिया? तो जवाब हजरत अली का सुनो। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ए फला सुन, जब मैंने तुझको पहले जमीन पर पटका था तो मैं तुझको दुश्मन इस्लाम समझ करके पटका था। जब मैं तुझे मारने जा रहा था तो ये नियत मेरी थी, तू इस्लाम का दुश्मन है इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। लेकिन जैसे तूने मेरे ऊपर थूक दिया तो मुझे तैश आया। अब उस गुस्सा में अगर मैं तुझे मार देता तो ये मेरे नफ्स का दखल होता, मुझे कोई सवाब ना मिलता, इसलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। उसने कहा, अली हाथ बढ़ाओ, मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिल होना चाहता हूं। हजरत अली ने उसको कलमा पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब हमारी नियत सही थी इस्लाम फैल रहा था, जब हमारे अंदर खुलूस था तो इस्लाम फैल रहा था, जब हमारे नियत के अंदर पाकीज़ा माहौल पाया जा रहा था तो इस्लाम फैल रहा था। सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, और ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। आप जरा अपने नियत की सफाई तो मुलाहजा फरमाते चलिए और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खुलूस और नियत को मुलाहजा फरमाइए। वो हजरत अली हैं। हजरत अली को कहां कहां देखोगे, कितना खुलूस है हजरत अली के अंदर,
कितनी अच्छी नीयत है हजरत अली के अंदर, नफ्स का दखल ना आने पाए, नफ्स पर इतना कंट्रोल है कि हमारा और आपका मिजाज ऐसा है कि अगर ऐसी बात आ जाए तो हम अपने दुश्मन को इस तरह से खुलूस और मोहब्बत पेश कर दिया करें, नहीं, बल्कि हमारा हाल तो यह है कि हम अपने नफ्स की दुश्मनी का बदला बज़ाहिर अच्छाइयों को पेश करके लोगों से लिया करते हैं। अपनी जबान में आप समझो कि हम पहले किसी से बदला लेना चाहते हैं तो उससे दोस्ती का पैगाम भेजते हैं, उसको अपना दोस्त बनाते हैं, नियत है बदला लेने की, जाहिरी तौर पर दोस्त बनाया जा रहा है, देखो खुलूस नहीं है तो ये दोस्ती एक दिन फिर दुश्मनी में बदल जाती है। लेकिन अगर प्यारे नियत में खुलूस पैदा हो जाए तो आप उसका असर मुलाहजा फरमाइए। ये नियत का खुलूस से नियत की सफाई है और नफ्स पर कंट्रोल है, जो हजरत अली ने उसको कलमा पढ़ा लिया, खून बहने से रुक गया। नियत पाक व साफ हो तो खून का धारा रुक जाता है। आओ नियत की बात आ गई तो एक बात और मैं अर्ज करता चलूं। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने हिंदुस्तान की सरजमीन पर 50 साल के करीब अफगानिस्तान के सरहद से लेकर के तिब्बत की वादी तक हुकूमत की है, जिनका कोई हिफाजती दस्ता नहीं था अपने तौर पर कि उनकी हिफाजत के लिए लश्कर के लोग साथ में चलते रहें। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी जंग पर जा रहे हैं, किसी ने कह दिया आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि ऐसे ऐसे बहरूपिये हैं कि आलमगीर सुल्तान आप उन बहरूपियों को नहीं पहचान पाएंगे। आपने कहा देखो मेरी निगाह ऐसी है कि एक बार मेरी नजर जिस पर पड़ जाती है मैं उसको पहचान लेता हूं, वो किसी भी हालत में आए मैं पहचान लेता हूं, रात की तारीकी में आए तो भी मैं उसे पहचान लेता हूं, दिन के उजाले में आए तो भी मैं पहचान लेता हूं। किसी ने कह दिया हुजूर एक बहरूपिया है, वो अपना रूप बदलता रहता है, पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आपने फरमाया बुलाया जाए बहरूपिये को। बहरूपिया बुलाया गया। आपने देखा, कहा मैं इसे फकीराना लिबास पहन करके उसने पता लगाया कि आलमगीर किस रास्ते से लश्कर इस्लामी को लेकर के आगे बढ़ेंगे अपने लश्कर को। जाकर के एक पहाड़ी पर वो बहरूपिया एक छोटी सी कुटी बनाता है, उस झोपड़े में बैठ जाता है, अल्लाहू अल्लाहू का नारा लगाने लगता है। अरसा गुजर गया, पूरे इलाके में मशहूर हो गई कि एक फकीर आया हुआ है, उसको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो न किसी से मिलता है न किसी को मिलने देता है, सिर्फ वो इबादत और रियाजत में रहता है, उसकी जबान पर हरदम अल्लाहू अल्लाह का नारा रहता है। आलमगीर अपने लश्करियों को लेकर के उधर से गुजर रहे थे, इन्हें भी इत्तिला मिली तो आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत थी। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को बुजुर्गों से बड़ा प्यार था, वो बुजुर्गों का बड़ा एहतराम किया करते थे, उनकी दुआएं लिया करते थे। हालांकि आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी सदी के मुजद्दिदे आजम हैं। आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तजदीदी कारनामा अंजाम दिया है और आला हजरत का तजदीदी कारनामा यह है कि भारत ही की सरजमीन से आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 500 उलमा को इकट्ठा किया था और एक किताब लिखवाई थी फिक़ह हनफी में, जिसका नाम फतावा आलमगीरी है। आज वो किताब सारी दुनिया में फिक़ह में चल रही है और मुस्तनद है। सल्तनत इस्लामिया भी जहां है वहां पर भी आज वो फिक़ह की किताब रखी रहती है, उससे इंसाफ किया जाता है, उससे शरई मसाइल बताए जाते हैं। ये हमारे हिंदुस्तान को यह फख्र हासिल है कि आलमगीर ने इसी सरजमीन पर रह करके 500 उलमा की जमात से फतावा आलमगीरी की तरतीब दिलवाई है। अपने वक्त के आलमगीर मुजद्दिदे आजम हैं, ऐसे वैसे नहीं है। आलमगीर को कश्फ भी हासिल है। हजरत आलमगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह चले जा रहे हैं, किसी ने कह दिया यही एक झोपड़ा पहाड़ी के बीच में पाया जा रहा है, एक फकीर वहां पर है। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया चलो जियारत कर ली जाए, दुआ ले ली जाए। आलमगीर आगे बढ़े, इत्तला दी गई फकीर के झोपड़े के दरवाजे पर किसी ने खड़े होकर के कहा शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब आलमगीर आ रहे हैं। तब तक आवाज दिया फकीर ने, यहाँ किसी शहंशाह की जरूरत नहीं है, मैं एक बेनवा फकीर हूँ, मुझे अपने झोपड़े में पड़े रहने दो, कोई जरूरत नहीं है। लोगों ने कहा हुजूर फकीर तो आने की इजाजत नहीं देता है। आलमगीर की मोहब्बत और बढ़ गई, उनका कदम और आगे बढ़ा। आगे बढ़ करके झोपड़े पर खड़े हुए दरवाजे पर आपने अस्सलामु अलैकुम कहा। फकीर ने सलाम का जवाब दिया। फकीर ने वहीं से डांटा शहंशाह यहाँ किसी शहंशाह की जरूरत नहीं है, ये मुझ गरीब फकीर का झोपड़ा है, हमें अपने रब को याद करने दो। शहंशाही तुम्हारे लिए जेब देती है, सुल्तानी तुम्हारे लिए जेब देती है, आप जिस काम पर जा रहे हो जाओ, हमें हमारे काम पर छोड़ दो।
आलमगीर ने समझ लिया कि ये बहुत बड़ा फकीर है, वाकई अब इसका चेहरा देखा जाए, इसकी जियारत की जाए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हुजरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद जैसे चेहरे पर निगाह पड़ी तो देखा कि चेहरा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, ये फकीर है और ऐसा अल्लाह की इबादत में मोह है कि किसी से कोई इलाका इसको नहीं है, किसी से कोई ताल्लुक इसको नहीं है। आलमगीर ने सलाम करने के बाद अपना ताज उतारा और ताज उतारने के बाद जैसे कदम पर रखना चाहा, फकीर ने ताज को हाथ में ले लिया, आलमगीर का कदम चूमा। आलमगीर चौंक पड़े कि फकीर मेरा कदम चूम रहा है। उस फकीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ए शहंशाह हिंदुस्तान, हमने आपको धोखा दे दिया, मैं वही बहरूपिया हूँ, मुझको आपने कहा था मैं पहचान लूंगा, देखिए मेरा कारनामा, आप मुझे पहचान ना सके। आलमगीर सख्ते में पड़ गए। आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए बहरूपिया, आप जो इनाम तू तलब कर मैं देने के लिए तैयार हूँ, जो तू मांग में देने के लिए तैयार हूँ। बहरूपिया ने रोते हुए ताज तो आलमगीर को वापस किया और उसने कहा, ए सुल्तान, अब मेरे परवरदिगार की याद में मुझे रहने दो, मैंने फकीराना लिबास बना लिया तो रब ताला शहंशाह को मेरे कदम पर झुकाता है। अगर मेरे दिल में खुलूस पैदा हो जाए तो सारी खुदाई फकीर के कदमों में चली आएगी, इसलिए अब मैं रिया छोड़ करके मुखलिस इबादत करूंगा, मेरी नीयत साफ हो गई है। जरा नीयत की सफाई मुलाहिजा फरमाइए, इन्नमल आमालु बिन्नियात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सुभानी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की नियत आपने देख लिया कितना खुलूस है मौलाए कायनात के अंदर। और एक बता दूं, हजरत अली की तरह दादो दहिश तो मुलाहिजा फरमाइए, हजरत अली कूफा में हैं। हजरत अली एक घोड़े पर सवार थे, आप जा रहे थे, नमाज का वक्त हो गया, आप घोड़े से उतर पड़े, आपने एक आदमी को बुलाया और इरशाद फरमाया, मुझे पहचानते हो? कहा, अमीरुल मोमिनीन में पहचानता हूँ। कहा, तुम एक काम करो, मेरे घोड़े को देखा करो, मैं नमाज अदा करके आ रहा हूँ। हजरत अली ने उसको घोड़ा देखने के लिए मुतय्यन कर दिया, नमाज पढ़ने के लिए चले गए। तो हजरत अली फरमाते हैं कि जब मैं जा रहा था तो मैं रास्ता में सोच रहा था कि अभी जब मैं वापस हूँगा तो इसको 2 दिरहम दे दूंगा घोड़ा की उजरत देखने की। हजरत अली फरमाते मैं अपने दिल में ये सोच रहा था, ये नियत मैंने कर ली। अब जब हजरत अली नमाज पढ़ने के लिए चले गए तो इधर जो घोड़ा देख रहा था इसने क्या किया, इसने कहा, अमीरुल मोमिनीन को तो मैं पहचानता हूं लेकिन वो शायद मुझे नहीं पहचानते। घोड़े को लेकर के चला गया दूसरे तरफ, घोड़े की जीन को उतार लिया और उस घोड़े के जीन को 2 दिरहम में बेच दिया, घोड़ा छोड़ दिया, भाग गया। मौलाए कायनात तशरीफ लाए तो देखा कि अपनी जगह पर घोड़ा नहीं है। आप बढ़े आगे तो देखा कि एक जगह घोड़ा है और उसी के करीब में एक ताजिर के पास मेरे घोड़े की जीन है। मैंने उससे कहा, ये मेरे घोड़े की जीन है, तुम्हारे पास कैसे आई? उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, अभी अभी आया था एक आदमी, 2 दिरहम में ये घोड़े की जीन बेच करके गया। मैंने कहा, घोड़ा बेचोगे? नहीं। तो उसने कहा, नहीं, घोड़ा नहीं बेचता हूँ, सिर्फ जीन ले लो, मैं इस जीन को बदल देना चाहता हूँ। तो मैंने इस जीन को 2 दिरहम में ले लिया है। वो घोड़ा लेकर के चला गया। हजरत अली फरमाते हैं, देखो वो घोड़ा मेरा है, ये जीन मेरी है, मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था, मैंने रखवाली के लिए उसको कर दिया था, मेरा घोड़ा देखा कर मैं नमाज पढ़ करके आ रहा हूँ। हाय अफसोस, उसको मिले वही 2 दिरहम। अगर वो सब्र किया होता तो वही 2 दिरहम अली के हाथ से पा जाता। अगर वो सब्र किया होता तो अली के घोड़े की रखवाली का सवाब उसे मिलता। अगर वो सब्र किया होता तो दयानतदारी का सवाब उसे मिलता। उसको उसके नफ्स ने हिलाक कर दिया। इनको मिले उसको 2 ही दिरहम चोरी के रास्ते से मिले। इसलिए मैं अर्ज करता हूँ, ये प्यारो, रोजी मुकद्दर है, बंदा रोजी को हलाल रास्ते से ढूंढता है, वही रोजी हलाल रास्ते से आ रही है। और अगर रास्ता उसने हराम बदल दिया तो वही रोजी हराम रास्ते से आ रही है। इसलिए रोजी मुकद्दर है। हजरत अली का खुलूस देखो, आपकी नियत देखो, आपके अंदर कितना खुलूस था कि मैं इसको अभी उजरत आकर के वापस दे दूंगा। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हो खलीफा हैं। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हो शाम के गवर्नर हैं। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर किसने उनको बनाया था, कैसे वो बने थे? तो सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत अमीर माविया को शाम का वाली बनाया था, शाम का गवर्नर सबसे पहले हजरत अबू बकर ने बनाया है। ए हजरत अमीर माविया को गाली देने वालों लोगों, सहाबा को गाली न दो, सहाबा को गाली देने से अपनी जबान को संभालो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका है कि मेरे बाद मेरे सहाबा को गाली न देना।
आका इरशाद फरमाते हैं, असहाबी कन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से तुम जिसकी इक्तिदा पाओगे, करोगे, राह पा जाओगे, हिदायत पा जाओगे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि असहाबी कुल्लुहुम आदिलुन यादुलुन, मेरे जितने सहाबा हैं सबके सब आदिल हैं, सबके सब जन्नती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई है कि मेरे जितने असहाब हैं सबके सब आदिल हैं, मेरे असहाब को मेरे बाद गाली न देना। आप अगर तारीख का मुताला करते हैं तो कभी कुछ लोग तारीखों को पढ़ते पढ़ते तो ज्यादा जहन पर जोर लगाते हैं, तो वो कह देते हैं कि साहब ये तो सहाबा में भी बड़ा इख्तिलाफ हुआ, तलवारें चल गई, खून बहा, ऐसे कैसे। आप अपने जहन पर वहीं गिरफ्त कीजिए, पाबंदी लगाइए। आज मैं सुबह सुबह जब अखबार पढ़ने लगा तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि बंबई में ऐसे भी कुछ दज्जाल जहन के पाए जा रहे हैं जो उलमा को मशवरा देते हैं कि तकरीरें ऐसी नहीं ऐसी कीजिए, इस तरह से नहीं इस तरह से कीजिए। हरामखोर लोग उलमा को मशवरा दे रहे हो कि तकरीरें ऐसी नहीं ऐसी कीजिए, इख्तिलाफी मसाइल मत लाइए, आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद की बातें कीजिए। जब तक अकीदे में सब लोग मुत्तहिद नहीं होंगे इत्तेहाद पैदा ही नहीं हो सकता है। तूने रसूल की सीरत नहीं पढ़ी है, अगर रसूलुल्लाह की सीरत तूने पढ़ लिया होता तो तू इस तरह से इत्तेफाक इत्तेहाद की बातें ना करता कि सबको लेकर के इत्तेहाद किया जाए, ये हो ही नहीं सकता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं सतफ्तरकु उम्मती अला सलासी व सबीना मिल्लतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। जब रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बंट जाएगी तो इत्तेहाद तुम कैसे पैदा कर रहे हो, इत्तेहाद के दाई तुम कैसे बन रहे हो। इसलिए तुम्हें कहना पड़ेगा कि जब तक अकीदे में लोग मुत्तहिद नहीं होंगे इत्तेहाद पैदा नहीं हो सकता। पेपरों में छाप छाप करके मुफक्किर बनते हैं, सबको एक प्लेटफार्म पर ले आओ, सबको एक प्लेटफार्म पर ले आओ। दुनियावी मामलात में तो इत्तेहाद हो ही नहीं पा रहा है, दीनी मामलात में मुत्तहिद कर रहे हैं। क्या फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो आप ये बता दीजिए कि जहन्नमियों और जहन्नमियों और जन्नतियों का इत्तेफाक होगा? आप खुद अपने जहन से फैसला करके मुझे बताओ, इत्तेफाक इत्तेहाद की दावत देने वाले अकीदे का इख्तिलाफ करके। आप जरा गौर करिए कि जहन्नमी और जन्नती का इत्तेहाद नहीं हो सकता है, तेल और पानी का इत्तेहाद नहीं हो सकता है, तारीकी और रोशनी का इत्तेहाद नहीं हो सकता है, हक और बातिल का इत्तेहाद नहीं हो सकता है। इसलिए जरूरत तुम्हें है कि पहले अकीदे में मुत्तहिद करो, और अपने भाई जब अकीदे में मुत्तहिद हो जाएंगे तो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद, और फितरतें आजाद हो, कुदरतें फिर साथ हो। बात बस इतनी सी है कि मुस्लिम बन जाए कोई। मेरे दोस्त, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अमीर माविया की बात हो रही थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अमीर माविया को शाम का गवर्नर पहले बनाया, और जब हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो हजरत उमर ने भी हजरत अमीर माविया को शाम की गवर्नरी पर बहाल रखा। और जब हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए तो भी हजरत अमीर माविया ही शाम के गवर्नर हैं। लेकिन जब हजरत उस्मान गनी की शहादत हो गई, हजरत अमीर माविया ने मुतालबा शुरू किया, अली बिन अबी तालिब, उस्मान गनी के कातलों से किसास लो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने इज्तिहाद में हजरत उस्मान गनी के कातलों के पता लगाने में सही हकीकत तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, पता नहीं चल पा रहा है, किसास लेने में ताखीर हो रही है। हजरत अमीर माविया ने लश्कर कशी कर दी, हजरत अमीर माविया ने चढ़ाई कर दी कि अली खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ, अगर खिलाफत से दस्तबरदार नहीं होते हो तो फिर उस्मान गनी के कातलों का बदला लो, किसास लो। हजरत अमीर माविया भी अपने मौकफ पर सही हैं और हजरत अली भी अपने मौकफ पर सही हैं, इसलिए कि ये सहाबा का इज्तिहाद है, और इज्तिहाद का मतलब ये होता है कि फकीह मुज्तहिद जब किसी मसले में खुलूस नियत से इज्तिहाद करता है, गौर व फिक्र करता है, और गौर व फिक्र के बाद नतीजे पर पहुंचना चाह करके अमल करता है, अगर वो हकीकत तक पहुंच गया तो उसको 2 सवाब मिलता है, और अगर वो अपने इज्तिहाद से हकीकत तक नहीं पहुंचा, हकीकत तक उसकी रसाई नहीं हुई, तो भी उसको 1 सवाब मिलता है। लेकिन इज्तिहाद करने में खुलूस शर्त है। अब आपको देखना है कि हजरत अली जिनके ऊपर
ایک اسلام دشمن نے تھوک دیا تھا اور انہوں نے اپنے خنجر کو سمیٹ لیا تھا، دوسری طرف رکھ دیا تھا، اپنے ہتھیار کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا تھا، کیا حضرت علی اپنی تلوار مسلمان کو قتل کرنے کے لیے اٹھائیں گے؟ کیا حضرت علی اپنی تلوار سے یہ نیت رکھیں گے کہ میں اپنی حکومت بنانے کے لیے معاذ اللہ مسلمانوں کو قتل کروں؟ اب آؤ ذرا دیکھو، حضرت امیر معاویہ کا بھی خلوص ملاحظہ کر لو. حضرت امیر معاویہ کا کتنا خلوص ہے. حضرت امیر معاویہ کے اندر اتنا خلوص ہے کہ کسی نے سوال کر دیا تھا، معاویہ یہ بتاؤ کہ تم بڑے ہو کہ علی بڑے ہیں، فضیلت کس کی زیادہ ہے؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ سنو. آپ فرماتے ہیں کہ علی جہاد کے لیے جس گھوڑے پر سوار ہو کر کے چلتے ہیں، اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی جو دھول اڑ رہی ہے، معاویہ اس دھول کے برابر بھی نہیں ہے. خلوص تو ذرا ملاحظہ فرمائیے. خلوص کی بات بتاؤں حضرت امیر معاویہ کی. حضرت امیر معاویہ کے خلوص کا حال یہ تھا، اللہ اکبر، کہ جب حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسن سے جنگ کی نوبت آئی تھی، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی سے جو جنگ کی تھی صفین کے میدان میں، اس میں دونوں طرف سے 90,000 مسلمان شہید ہوئے تھے. دونوں طرف سے مسلمان شہید ہوئے، دونوں طرف سے صحابہ ہیں. اتنی سخت جنگ ہوئی تھی، اجتہاد میں اس طرح سے سخت اختلاف ہوا تھا. تو اجتہاد میں تو اتنی تلواریں چلی، اور اگر آج اجتہاد میں غلطیاں ہو جا رہی ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مولانا لوگ لڑائی کروا رہے ہیں، یہ مولانا لوگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، حرام خور کہیں کے. پتا کچھ نہیں ہے، مولانا لوگ لڑائی کرواتے ہیں. ہاں حضرات دیکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کو دونوں طرف سے 90,000 مسلمان شہید ہو گئے تھے. حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ اگر حسن ابن علی سے بھی میری جنگ ہوتی ہے تو حفاظ کرام نہیں رہ جائیں گے، صحابہ نہیں رہ جائیں گے، وہ لوگ جن پر ہمیں ناز ہے تقوی اور طہارت میں، وہ لوگ نہیں رہ جائیں گے. حضرت امیر معاویہ نے ایک سادہ کاغذ حضرت امام حسن کے پاس بھیجا. حسن ابن علی کے پاس یہ سادہ کاغذ لے جاؤ، جتنی شرطیں وہ رکھ دیں سب مجھے منظور ہے. حضرت امیر معاویہ کا خلوص دیکھو. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اجتہاد میں صحیح ہیں، حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی دونوں اپنے اجتہاد میں صحیح ہیں. حضرت امیر معاویہ کا خلوص ملاحظہ کرو. جب حضرت علی سے اختلاف ہوا اور آپسی اختلاف کا علم روم کے شہنشاہ ہرقل اعظم کو ہوا، ہرقل بادشاہ نے جب سنا کہ معاویہ ابن سفیان اور علی ابن ابی طالب ان دونوں میں اختلاف ہوا ہے، مسلمانوں میں دو جماعتیں ہو گئی ہیں اور آپس میں خون ریزی ہو رہی ہے، تو خفیہ قاصد معاویہ ابن سفیان کے پاس یعنی حضرت امیر معاویہ کے پاس ہرقل اعظم نے بھیجا. اس خفیہ قاصد سے کیا کہا؟ جاؤ یہ تحفے تحائف لے جاؤ اور امیر شام معاویہ کو دو، اور معاویہ سے کہہ دو کہ اگر انہیں لشکر کی ضرورت ہو تو ہم پوری طاقت کے ساتھ امیر معاویہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. ہرقل اعظم کا قاصد شام میں آیا حضرت امیر معاویہ کے پاس، اور جب حضرت امیر معاویہ کے پاس قاصد پہنچا، تحفے پیش کیا. آپ نے کہا کیسا تحفہ ہے؟ کہا ملک روم کے شہنشاہ ہرقل اعظم کا تحفہ ہے. کہا کیوں تحفہ بھیجا؟ اس نے کس خوشی میں بھیجا ہے؟ کہا ہرقل اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ سے اور علی سے اختلاف ہو گیا ہے، جنگ کی نوبت آ گئی ہے. ہرقل اعظم نے کہا ہے کہ ان تحفوں کو قبول کریں امیر، اور اگر لشکر کی ضرورت ہو تو امیر حکم دیں، ہم لشکر لے کر کے امیر کی امداد کے لیے آ رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ کا سننا تھا. آپ نے اپنی تلوار کو فضا میں بلند کیا اور کہا اگر قاصد کا قتل کرنا درست ہوتا تو ابھی میں تیری گردن اڑا دیتا. ان تحائف کو تو لے جا. پیر سے ٹھوکر مار دیا اور کہا ایسے تحائف کو میں جوتے سے اڑا رہا ہوں، مجھے ایسے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے. اور ہرقل سے کہہ دو یہ میرا علی کا اپنا اختلاف ہے، میں ہرقل پر اپنی فوج بھیجنے کے لیے تیاری کر رہا ہوں، وہ ہماری طرف فوج کیا بھیجے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے قسم دنیا پر حضرت امیر معاویہ نے لشکر کشی فرمائی تھی. وہ حضرت امیر معاویہ ہے، یہ حضرت امیر معاویہ کا خلوص ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم حضرت علامہ صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. حضرت امیر معاویہ کا خلوص ذرا ملاحظہ فرماؤ کہ
इख्तिलाफ पर हजरत अली के मुकाबले में लश्कर भेजना चाहता है। अमीर माविया ने कैसा सख्त जवाब दिया था। यही हजरत अमीर माविया हैं। जब हजरत अमीर माविया सरकार के सामने हुए, आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अमीर माविया का दुआ देते हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया, अल्लाह अमीर माविया तुम्हें हादी बनाए, महदी बनाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अंसुर, अल्लाह माविया तुम्हारी मदद फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमीर माविया की सल्तनत में फी बिलाद अमकना वद्दिकहु मिनल अज़ाब, अल्लाह तुमको मुल्क अता फरमाए और तुम्हारे मुल्क में तमकीन तुम्हें अता फरमाए और अल्लाह अजाब से बचाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर माविया को यह दुआ दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ रद्द हो गई? नहीं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। तो हजरत अमीर माविया भी सरकार के चहेते सहाबी हैं, कातिबे वही हैं। अल्लाह के हबीब पर जब कुरान की आयतें नाजिल होती थी तो जो सहाबा लिखने पर मुतय्यन थे उनमें से एक हजरत अमीर माविया भी हैं। अल्लाह के रसूल पर कुरान की आयतें नाजिल हो रही हैं और अल्लाह के हबीब पढ़ करके सुना रहे हैं, अमीर माविया उसे लिख रहे हैं, वो कातिबे वही हैं। हजरत अमीर माविया को इसीलिए मोमिनों का मामू कहा जाता है। हजरत अमीर माविया की बहन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं, हजरत उम्मे हबीबा। आप कुर्बान जाओ, हजरत अमीर माविया की शान कैसी है। हजरत अमीर माविया अभी तो जाहिद कैसे हैं। मैंने अर्ज किया था कि एक मर्तबा हजरत अमीर माविया से फजर की नमाज में ताखीर हो गई। इतना रोए कि उनके नामे अमल में 200 रकात का सवाब लिखा जा रहा है। शैतान ने बेदार कर दिया सवेरे सवेरे। आपने पूछा कौन? कहा शैतान। कहा इतने सवेरे तुझे जगाने की जरूरत क्या है? कहा माविया मैंने कल तुम्हें थोड़ी सी ताखीर में वसवसा डाल दिया था तो तुम इतना रब, जब 200 रकात का सवाब लिखा जा रहा है। शैतान ने बेदार कर दिया सवेरे सवेरे। आपने पूछा कौन? कहा शैतान। कहा इतने सवेरे तुझे जगाने की जरूरत क्या है? कहा माविया मैंने कल तुम्हें थोड़ी सी ताखीर में वसवसा डाल दिया था तो तुम इतना रब के बारगाह में रोए हो कि 200 रकात नमाज का सवाब तुम्हारे नामे अमाल में लिखा जा रहा है। आज मैंने पहले तुम्हें बेदार कर दिया है ताकि अमीर तुम 2 ही रकात का सवाब पाओ। वो हजरत अमीर माविया है। इबादत और रियाजत में उनका रोना देखो, सल्तनत में उनका खुलूस देखो, तदब्बुर में उनके तदब्बुर को देखो, सियासत में उनकी सियासत के देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ देखो। अल्लाह के हबीब हजरत अमीर माविया को दुआ दे रहे हैं और या हजरत अमीर माविया को गाली दे रहे हैं। नबी तो दुआ दें और आप उम्मती होकर के हजरत अमीर माविया को गाली दें। मैं अहले तशा से कहता हूं कि वो अपना ज़हन फिक्र जो लगा रहे हैं सहाबा को गालियां देने में, वो सोचें कि नबी हजरत माविया को दुआ दे रहे हैं और ये उम्मती होकर के गाली दे रहे हैं। जरा गौर फरमाइए हजरत अली का मामला क्या है। हजरत अली के वसाल का जब वक्त आया, हजरत माविया के वसाल का जब वक्त करीब हुआ तो आपने 3 वसीयतें की। आपने फरमाया देखो जब मेरी रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज कर जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मेरे लिए तुम क्या करना, मेरे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तहबंद शरीफ है, उसमें मुझे कफन दे देना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाखूने मुबारक मेरे पास हैं, उसको मेरी जबान पर रख देना। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाल शरीफ मेरे पास हैं, उन मुबारक मुकद्दस तय्यब ताहिर बालों को सरकार के मेरी आंखों पर रख देना। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, सरकार के नाखूने पाक से इतनी मोहब्बत है, सरकार के बाल शरीफ से हजरत अमीर माविया को इतनी मोहब्बत है, सरकार जिस तहबंद शरीफ को इस्तेमाल कर ले हजरत अमीर माविया उसको अपने साथ कब्र में लेकर के जा रहे हैं। जो हुसैन नबी के सीने पर खेले हैं, जो हुसैन नबी कौनैन की मुकद्दस उंगली को चूसे हैं, जो हजरत इमाम हुसैन नबी कौनैन के दोषे मुबारक पर सवार हुए हैं, जो हुसैन नबी कौनैन की मुकद्दस जुल्फों को थामे हैं, जिस हुसैन के मुंह में नबी कौनैन ने अपने लिसाने मुकद्दस को डाल करके शीरीनी अता फरमाई है, हुसैन से क्यों नहीं मोहब्बत है? सहाबियों को आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है। हजरत मुआविया ना हुसैन के दुश्मन हैं और ना हजरत इमाम हुसैन मुआविया के दुश्मन हैं। इस फर्क को समझो, इस निस्बत को समझो। कहाँ हैं वो लोग जो निस्बतों के ताल्लुक से कह दिया करते हैं शिर्क है, बिदात है, शिर्क है, बिदात है। हजरत अमीर माविया ने फरमाया फिर मुझे अरहमुर राहिमीन के सपुर्द कर देना।
मुझे कब्र में रख देना। और ऐसे ही किया गया। हजरत अमीर माविया हजरत अली में लड़ाई हुई, बड़ी भयानक जंग हुई थी, जंग सिफ़ीन। मौलाए कायनात के लश्करी हैं, हजरत अमीर माविया के लश्करी हैं, दोनों तरफ से सहाबा हैं, दोनों तरफ से रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करने वाले हैं, दोनों तरफ से सरकार की मुकद्दस सीरत को देखने वाले हैं, दोनों तरफ से इज्तिहाद का मामला है, दोनों तरफ से नियत सही है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का तायुन हजरत उस्मान गनी के कातिलों का हो नहीं पा रहा है, शुबहे की बुनियाद पर कत्ल का फतवा नहीं दिया जा सकता है। और हजरत माविया कह रहे हैं कि पता लगा करके जल्द से जल्द क़िसास लिया जाए, और क़िसास लेने की जब सलाहियत आपके अंदर नहीं है तो आप दस्तबरदार हो जाएं। ये हजरत अमीर माविया का मामला है और ये हजरत अली का मामला है। दोनों अपने कारनामे में मुखलिस हैं। अल्लाह अकबर। जंग होती है, बड़ी भयानक जंग हुई, इतनी भयानक जंग हुई कि 90,000 मुसलमान दोनों तरफ से शहीद हो गए। हजरत अली की फौज गालिब आ गई। जब हजरत अली की फौज गालिब आई, हजरत अमीर माविया ने फौरन नेजा पर कुरान शरीफ को बुलंद करवाया। कुरान को उठाओ, इशारा दिया जा रहा है कि हम सब कुरान के मानने वाले हैं। जैसे नेजा पर कुरान का बुलंद होना था कि तलवारें सबकी नीचे हो जाती हैं। आपस में बैठक हुई, उसको तो मैंने बहुत बयान किया है यार कि ये तफरका कैसे हुआ, क्या हुआ। अब उसी को बयान करूंगा तो आप कहेंगे कि सुबहानी साहब की कैसेट में ये तकरीर सुन चुका हूं, फिर वही दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं इजमालन आगे बढ़ रहा हूं। हजरत अमीर माविया और हजरत अली की फिर वो जंग बंद हुई, मगर उस जंग का नक्शा भी अजीब है हजरत। जब तारीख पढ़िए तो अजीब अजीब मामला पाया जाता है। उस जंग में हजरत अबू हुरैरा भी गए थे। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी हैं सरकार के, सरकार की हदीसों को बयान करने के लिए। बुखारी शरीफ में सिर्फ हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत करदा 2000 हदीस हैं। वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हजरत अबू हुरैरा का हाल ये था कि जब खाने का टाइम होता था तो हजरत अमीर माविया के लश्कर की तरफ चले जाते, और जब जंग होने नमाज पढ़ने का वक्त होता तो हजरत अली के पीछे आकर पढ़ते, और जब जंग होने लगती तो ये अलग हो जाते थे, पहाड़ी के बगल में खड़े हो जाते थे। लोगों ने कहा अबू हुरैरा ये क्या बात है? तो कहा दस्तरखान माविया का अच्छा है, खाना वहां खा लेता हूँ, नमाज अली की अच्छी है, नमाज यहाँ पढ़ लेता हूँ, और दोनों हैं मुसलमान। जब जंग होती है तो मैं किसी तरफ नहीं रहूंगा, अलग खड़ा हो जाता हूँ। अजीब अजीब नौइयत है, आप जरा मुलाहजा तो फरमाएं। इसलिए सहाबा के जो आपसी इख्तिलाफात हुए, हम मुसलमानों को इजाजत नहीं है कि उनके ताल्लुक से लब कुशाई करें, उनके ताल्लुक से कुछ सोचें, नहीं, बल्कि हम ईमान रखें कि रब ने कुरान अजीम में फरमाया है अस्साबिकून अव्वलून, वो लोग पहले पहले ईमान वाले लाने वाले हैं, रसूल पर जान निछावर करने वाले हैं, वो जन्नती हैं, आपस में एक दूसरे के मुहिब हैं। रब उन लोगों के बारे में फरमाता है जो मेरे महबूब के असहाब हैं, वो सबके सब जन्नती हैं। मुतअद्दिद आयात करीमा असहाब के बारे में हैं। इसलिए हम मुसलमानों को जरूरत इस बात की है कि अगर उनके आपसी इज्तिहादात के इख्तिलाफात हैं तो हम उनमें लबकुशाई न करें। एक सवाल हमारे ऊपर ठोक सकते हो कि सुबहानी साहब बड़े जोर शोर से दावा कर रहे हो, तो हजरत इमाम हुसैन और यजीद का भी तो आपसी इख्तिलाफ था, तो जैसे हजरत इमाम हुसैन की तारीफ की जा रही है ऐसे यजीद को भी कुछ न कहो। ये सवाल आप हमारे ऊपर ठोक सकते हैं नहीं, बल्कि आपके घर में ये सवाल गूंज रहा है। आप यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हो, और पूछ लो गैर मुकल्लिद मौलवियों से, अगर गलत साबित हो जाए तो आप जो सजा देना चाहें मेरे लिए ऐलान कर दें, मेरे खिलाफ अदालत में मुकदमा कायम कर दें, इज्जत हतक का दावा करो। पूछो गैर मुकल्लिद मौलवियों से कि यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हु कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए। खुदा की कसम तुम्हें पता चल जाएगा कि इनका ज़हन फिक्र यजीदी ज़हन है कि इनका ज़हन फिक्र हुसैनी ज़हन है। ये बात तो आ गई जो मैंने बता दिया, ताकि ये सवाल न ठोकें, ये सवाल न करें कि फिर इनके इख्तिलाफात जाती थे, इज्तिहाद के थे। जी नहीं, हजरत इमाम हुसैन की नियत तो सही है, इस्लाहे उम्मत की नियत है, मगर यजीद के अंदर आमरीयत आ गई थी।
यजीद के अंदर गुनाह करने का जोशो जज्बा पैदा हो गया था। इमाम हुसैन यजीद के गुनाह पर यजीद से लड़े हैं, और हजरत अमीर माविया और हजरत अली का इख्तिलाफ जो हुआ है वो गुनाह की बुनियाद पर नहीं हुआ है, बल्कि आपस में इज्तिहाद की बुनियाद पर हो रहा है। ये कह रहे हैं ऐसा किया जाए, और वो कह रहे हैं कि जब सही तायुन नहीं हो पा रहा है तो शुबहे में कत्ल करना जायज नहीं है। हजरत अली का ये फतवा है। दोनों तरफ से फतवा है और दोनों का सही मामला है। और यहाँ तो फतवा की बात है ही नहीं, यहाँ तो एक तरफ फतवा है तो दूसरी तरफ लकवा है, तो दोनों में इत्तेफाक व इत्तेहाद का मामला कहाँ है। अब आप जरा गौर फरमाएं, हजरत अली हजरत अमीर माविया में मसालहत हो गई। हजरत अमीर माविया शाम के गवर्नर रहे, हजरत अमीर माविया को गवर्नरी का ओहदा रहा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो खलीफतुल मुस्लिमीन रहे। जब हजरत अली की शहादत हुई, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए, तो हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो को आपका खलीफा मुंतखब किया गया। 6 महीना तक हजरत इमाम हसन खिलाफत के दावेदार रहे, खिलाफत की जिम्मेदारियों को संभालते रहे। लेकिन जब इख्तिलाफ बढ़ा और इख्तिलाफ बढ़ने की सूरत में मेरे आका का फरमान सामने आया, हजरत इमाम हसन के ताल्लुक से मेरे सरकार ने एक मर्तबा फरमाया था कि इस मेरे बच्चे के जरिया से अल्लाह ताला मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह कराएगा, मुसलमानों के 2 गिरोहों में सुलह कराएगा। सरकार के अल्फाज को समझो, सरकार दोनों जमात को मुसलमान कह रहे हैं। तो मेरे आका जब दोनों जमात को मुसलमान कह रहे हैं तो एक जमात की तारीफ करना, दूसरी को गाली देना, ये कहाँ हमारे और आपके लिए दुरुस्त है। चुनांचे बातें आपस में हुई। हजरत इमाम हसन के मानने वाले तैयार हो गए कि हम अमीर शाम से जंग करेंगे, आप ही खलीफा रहिए। हजरत इमाम हसन ने इनकार फरमा दिया, नहीं। तब तक हजरत अमीर माविया का कासिद पहुंच गया सादा कागज लेकर के, और कहा, यह अमीर शाम अमीर माविया की तरफ से मैं लेकर के आया हूं, आप इस पर जो शर्तें लिख दें। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हों ने अपनी शर्तों को सादा कागज पर लिख करके भेज दिया। उसमें से एक शर्त यह भी थी कि मैं आपको खलीफतुल मुस्लिमीन तस्लीम करता हूं, आपके बाद खिलाफत मुसलमानों का हक होगा, मुसलमान जिसको चुनेंगे खलीफा वो होगा। अगर मुसलमान मेरे भाई हुसैन इब्ने अली को चुन लेंगे तो हुसैन इब्ने अली खलीफा बनाए जाएं। ये शर्त भी हजरत इमाम हसन ने लिख करके अमीर माविया को दे दिया। हजरत अमीर माविया ने शर्तों पर दस्तखत किया, शर्त की मंजूरी हो गई। हजरत अमीर माविया खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन बने, और हजरत इमाम हसन ने दस्तबरदारी का मामला पेश कर दिया। आप जरा गौर फरमाओ, हजरत अमीर माविया ने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया। हजरत अमीर माविया के दौरे हुकूमत में इस्लामी सल्तनत की उसात किस किस तरह से हुई। पहला दस्ता हजरत अमीर माविया ने कुस्तुनतुनिया पर भेजा। ये लोग बहुत चीखते और चिल्लाते हैं कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि पहला दस्ता, पहला लश्कर इस्लामी जो कुस्तुनतुनिया पर हमला आवर होगा, मग़फ़ूरुन लहू, वो सबके सब बख्शे बख्शाए हैं। सही है, मेरे आका की हदीस पाक है, मेरे आका ने सही फरमाया है। तो ये कहते हैं कि यजीद भी तो उसमें शामिल था। आप जरा तारीख उठा करके पढ़ लो और यजीद की जिंदगी पढ़ लो। आप जरा गौर फरमाइए, तारीख और मुताले में उसात पैदा करके तारीख को तोड़ो मिरोड़ो नहीं आरएसएस की तरह, जैसे भारत में आरएसएस वाले तारीख को तोड़ मिरोड़ करके और जुल्म बर्बरियत का नंगा नाच हरदम नाचने की कोशिश करते हैं, ऐसे आप तारीख को तोड़ो मिरोड़ो नहीं। हजरत अमीर माविया ने जो लश्कर इस्लामी भेजा था कुस्तुनतुनिया की तरफ, वो यजीद इब्ने माविया नहीं है, बल्कि वो दूसरे हैं। यजीद की उम्र 4 बरस की थी उस वक्त। अब कहां मामला पाया जाता है। अच्छा, फर्ज कर लो हजरत इनकी बात ही मान ली जाए, इनकी बात ही तस्लीम कर ली जाए कि जो पहला लश्कर इस्लामी का दस्ता होगा सब बख्शे बख्शाए हैं। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह ने तो यह भी फरमाया है कि जिसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया वो बख्श दिया जाएगा। तो कोई कहे कि मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया हूं, अब मैं बख्श दिया गया, अब मैं जा रहा हूं चोरी करूंगा, शराब पीऊंगा, ज़िना करूंगा, तो आपका फतवा क्या होगा? आपका फतवा क्या होगा? आप जरा मुझे बताइए। रसूलुल्लाह ने तो यहां तक फरमाया कि सलाम फैलाओ तुम्हारे लिए जन्नत बख्श दिए जाओगे। तो आप सलाम कर लो, बस रोजा नमाज सब छोड़ दो कि सरकार का तो फरमान है ही है कि सलाम फैलाओ जन्नती हो जाओगे। आप जरा फतवे की जबान में हमसे बात तो कीजिए। एक आदमी रसूलुल्लाह की हदीस पाक पर अमल कर रहा है, नबी ने फरमाया कि जिसने सलाम को फैलाया वो जन्नत में जाएगा।
तो आप सिर्फ सलाम फैलाते रहिए, नमाज छोड़ दीजिए, हज छोड़ दीजिए, ज़कात देना छोड़ दीजिए, कुरान की तिलावत छोड़ दीजिए और कह दीजिए कि जब रसूलुल्लाह ने सलाम फैला देने ही पर बख्शिश का पैगाम दे दिया है तो अब हमें ये सब करने की जरूरत क्या है। नहीं, आप फिर वही जुमला दोहराओगे कि अगर हम गुनाह करेंगे तो गुनाहों की सजा भी मुतय्यन है। जिस रसूल ने सलाम के फैलाने पर जन्नत की बशारत अता फरमाई है वही नबी कौनैन सलाम छोड़ देने पर भी सजा का तयन फरमा रहे हैं। जिस रसूल ने सलाम पर जन्नत की बशारत दे दी है वही मेरे आका नमाज के तर्क पर भी अजाब इलाही का पैगाम दे रहे हैं, वईद और अजाब की बात बता रहे हैं। नमाज छोड़ोगे तो तुम्हें इतना अजाब होगा, रोजा छोड़ोगे तो तुम्हें ये अजाब होगा। अब आप जरा गौर फरमाइए कि यजीद अगर उस लश्कर में शामिल ही था तो यजीद ने जो मदीना की बेहुरमती की है, यजीद ने जो इमाम हुसैन को कत्ल करवाया है, यजीद ने जो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादों को करबला की तपती हुई जमीन पर तड़पा तड़पा करके अपने फौजियों के जरिया से शहीद करवाया है, दाना पानी सब बंद किया है, जुल्म किया है, इस जुल्म का कोई अजाब होगा कि नहीं, इस जुल्म की कोई सजा होगी कि नहीं, इस कारनामे के लिए उसे भुगतना पड़ेगा कि नहीं। जरा फतवे की जबान में भी बात करते चलो तो भी तुम्हें कहना पड़ेगा कि यजीद ने गलत किया और इमाम हुसैन के साथ जो कुछ हुआ वो यजीद के इशारे पर हुआ। तो तरफदारी करके अपनी आकबत मत बर्बाद करो यारो। बात चल रही थी अमीर माविया की। हजरत अमीर माविया के दौर में बड़ी फतूहात हुई हैं, इस्लामी जंगें हुई, हजरत अमीर माविया ने बड़ी तरक्कियां की, हजरत अमीर माविया ने भी लश्कर को खूब संवार सजा करके रखा। मुसलमान बहुत ही मुस्तफीज और मुस्तनीर हो रहे थे, इस्लामी माहौल बढ़ रहा था। हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के जब वसाल का वक्त हुआ तो कुछ ऐसे मुशीर आपके पास बैठे, बैठने के बाद मशवरा किया कि अमीर आप बीमार हैं, बीमारी के बाद आपका आखिर खलीफा अमीरुल मोमिनीन कौन बनेगा, न हो तो यजीद को बना दिया जाए। हजरत अमीर माविया ने फरमाया मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं बर्दाश्त करेंगे? इसलिए कि यजीद के अंदर लाओबालीपन है, यजीद के अंदर लड़कपन पाया जा रहा है। अमीर ठीक हो जाएगा, वो दुरुस्त हो जाएगा। कुछ हुकूमत के लालची ऐसे थे, कुछ दुनियादार ऐसे थे, कुछ ऐसे थे जिनको उनके नफ्स ने धोखा दे दिया था। ऐसा मशवरा बते रहे थे। हजरत अमीर माविया हज के मौका पर आए और जैसे आपने इशारा किया तो मुसलमानों में इश्तियाल देखा गया। अमीर माविया खामोश हो गए। मौर्रिखीन इसको भी तो लिखते हैं। आप अगर ये कह दें कि हजरत अमीर माविया ने अपने बाद यजीद को खलीफा नामजद कर दिया था, यह हजरत अमीर माविया की इंतहाई गलती है, तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस तारीख को यहाँ आप पढ़ रहे हैं वहीं पर यह भी तो तारीख है कि हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यजीद को ताकीद की थी कि तुम्हें पाबंदे शरा होना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कोई शरीयत की खामी ना हो ताकि मुसलमान लबकुशाई न करें, और जब उन्होंने देखा था अपने वसाल के वक्त के करीब कि इसके अंदर पाबंदियां नहीं हो पा रही हैं, तो हजरत अमीर माविया ने हजरत इमाम हसन के सुलह का वो दफा लेकर के आपने वसीयत नामा लिख करके मदीना शरीफ रवाना फरमाया था कि हुसैन इब्न अली के पास पहुंचा दिया जाए और मुसलमानों के पास पहुंचा दिया जाए। यजीद ना अहल है। यजीद को खबर कर दी गई कि तुम्हारे बाप तो वसाल में हैं, तुम्हारे बाप तो जाकनी के आलम में हैं, मगर इस तरह से वसीयत नामा लिख करके भेजा जा रहा है। रास्ते में यजीद ने उसे पकड़वा लिया था और पकड़वाने के बाद उसको बदल दिया था और अपनी बैत का मुतालबा करके इमाम अली मकाम की तरफ भेज दिया था। इधर हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया। हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ। अब आप जरा बताइए, रास्ते में खत को पकड़ करके बदल दिया जाए तो उसका क्या इलाज है? हजरत अमीर माविया का विसाल हुआ, कासिद यजीद की तरफ से पहुंच गया था मदीना तैयबा में। ये तो हजरत अमीर माविया की चूंकि मुकद्दस उनके हालात का बयान आपके सामने आ रहा है, इसलिए यहां तक मैंने बयान कर दिया। हजरत इमाम हुसैन से बैत का मुतालबा, हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत, करबला के मैदान में इमाम हुसैन के साथियों का आना और मक्का मदीना शरीफ से चल करके करबला तक पहुंचना, रास्ते की सौबतें और परेशानियों को इंशाअल्लाह इन सारी बातों को आप कल सुनेंगे, कल समाप्त फरमाएंगे। आज मैं जो बता रहा हूं उसको जरा सुनो और समझो। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुआ है हजरत अमीर माविया। हजरत अमीर माविया ने बड़ी मेहनत और मशक्कत की है। हजरत अमीर माविया की हुकूमत में कोई कमी नहीं थी, कोई खामी नहीं थी। और खामी और कमी कैसे हो? हजरत अमीर माविया के लिए भी रसूलुल्लाह की दुआ है और अमीर माविया के बाप अबू सुफियान के लिए भी रसूलुल्लाह की दुआ है। आप कहोगे कि अबू सुफियान तो सरकार के बहुत बड़े दुश्मन थे। सही है, दुश्मन थे। सरकार के खिलाफ तलवारें भी उन्होंने उठवाई हैं, खुद तलवार उठाई भी है। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अगर किसी ने जर्रा बराबर एहसान कर दिया,
اور میرے آقا نے دعا کر دی تو احسان کا بدلہ اسے مل جاتا ہے۔ میرے آقا نے جب ابتدائے اسلام میں اعلان نبوت فرمایا، اسلام پڑھ رہا تھا، شروع میں جب میرے سرکار نے کلمہ پڑھانے کی دعوت دی، کلمے کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا، تو سب سے زیادہ مکہ میں مشتعل ابو جہل ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر پاک چھوٹی ہے، ابو جہل حضرت فاطمہ زہرا کو ایک تماچا مار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو چوٹ لگنا تھا، سرکار کی بیٹی روتی ہوئی اپنے باپ کے پاس آئی، ابا حضور مجھ کو ابو جہل نے مارا ہے، ابو الحکم نے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، دونوں عالم کے مالک و مختار تشریف فرما ہیں۔ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اگر زمین کو حکم دیتے تو زمین پھٹ جاتی، ابو جہل سما جاتا، مگر میرے سرکار نے بھی اپنے نفس کو تعلیم امت کے لیے دیکھو کس طرح سے بچایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابتدائے اسلام ہی میں ایسی بد دعا کر دیتے ابو جہل کے لیے، تو یہ بھی مورخ کہہ سکتا تھا کہ اگر ایک تماچا کسی نے نبی کی بیٹی کو مار دیا تو صبر اور رضا کا اور شکر کا پیغام نبی کو دینا چاہیے، نہ کہ بدلہ لینا چاہیے، یہ بھی لوگ کہہ سکتے تھے۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات بن کر کے آئے ہیں، رسول کونین کا ہر فعل تعلیم امت کے لیے ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تم ابو سفیان کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان اس وقت کلمہ نہیں پڑھے تھے، سرکار کے مخالفین میں سے تھے۔ آ کر کے حضرت فاطمہ زہرا نے ابو سفیان کو بتایا کہ مجھ کو ابو الحکم یعنی ابو جہل نے مارا ہے۔ ابو سفیان اٹھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد حضرت خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا، کہا بیٹی چلو۔ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو سفیان نے فاطمہ زہرا سے کہا بیٹی جتنے زور سے اس نے تم کو مارا تھا تھپڑ، اتنے ہی زور سے تم مارو اس کے چہرے پر تھپڑ۔ حضرت فاطمہ نے مارا اس کے چہرے پر تھپڑ۔ فاطمہ کا تھپڑ جس چہرے پر لگ جائے اس کو کہاں کلمہ نصیب ہوگا؟ یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ جب دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اسلام کو عزت عمر سے دے دے یا ابو جہل سے دے دے، تو عمر کے حق میں اللہ کے محبوب کی دعا قبول ہو رہی ہے۔ فاطمہ کا تھپڑ پڑ گیا ہے ابو جہل کے چہرے پر، اس لیے رسول اللہ کی بیٹی کا وہ وقار ہے کہ اب اسے اسلام نہیں نصیب ہوگا، اب اسے سعادت نہیں ملے گی، اب اس کے لیے شقاوت عزلی ہی ہے۔ خاتون جنت نے مار دیا تھا تھپڑ، اب وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ نقطہ سمجھو، رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھے ہیں، حضرت خاتون جنت واپس گئی، عرض کیا آپا حضور، ہاں بیٹی۔ ابو سفیان میرا ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے، میں نے ان سے شکایت کی اور ہاتھ پکڑ کر کے لے گئے تو ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے کہا بیٹی تم مارو کھینچ کر کے تھپڑ۔ ابا میں نے مارا اس کے چہرے پر کھینچ کر کے تھپڑ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست نبوت اٹھ گئے۔ آقا عرض کرتے ہیں یا الہی ابو سفیان کے اس فعل کو فراموش نہ کرنا، مولا تو ابو سفیان کو اس کا اجر دے دینا۔ نبی کی دعا قبول ہوتی ہے، اور جب مکہ فتح ہو رہا ہے تو حضرت ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے ہی، لشکر اسلامی کے داخلہ سے پہلے ہی رسول کونین کا کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخلہ لے لیتے ہیں۔ آپ ذرا غور تو فرماؤ، یہ حضرت امیر معاویہ کے باپ ہیں حضرت ابو سفیان۔ حضرت امیر معاویہ کے اندر سلطنت کا تدبر بہت زبردست پایا جا رہا تھا، بڑی سوجھ بوجھ تھی حضرت امیر معاویہ کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ کے سلطنت کرنے کے تدبرانہ ماحول سے روم کا ہرقل اعظم پریشان ہو گیا تھا۔ آپ نے قسطنطنیہ پر پہلا دستہ بھیج دیا تھا، اتنی دور اسلامی مجاہدین نہیں گئے تھے، یہ سب سے پہلا دستہ حضرت امیر معاویہ کا ہے جو سمندروں کو پار کرتے ہوئے قسطنطنیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں ان کا جوش و جذبہ ملاحظہ فرمائیں۔ اس دستہ میں حضرت ایوب انصاری بھی تھے، اس دستہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے مجاہد تھے، متقی پرہیزگار تھے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبین تھے۔ جا رہے ہیں قسطنطنیہ پر چڑھائی ہونے والی ہے، لشکر اسلامی کا دستہ جا رہا ہے۔ میرے دوستو جب تاریخ اسلامیہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو طبیعت مچلنے لگتی ہے، کیسے کیسے بہادر تھے یہ، کیسے کیسے جانباز لوگ تھے یہ۔ آج اسلام کی خاطر اگر ہمیں ایک تھپڑ لگ جائے تو ہم اپنی سبکی محسوس کرتے ہیں،
اسلام کے خاطر اگر ہمیں اور آپ کو ایک وقت بھوکا رہنا پڑے تو اپنی سبکی ہم محسوس کرتے ہیں. اسلام کے خاطر اگر ہمیں اور آپ کو کوئی مسلمان سمجھ کر کے مار رہا ہے، دکانیں جلا رہا ہے، مکان جلا رہا ہے تو ہم آہو فغاں کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا لشکر اسلامی کی تاریخ پڑھتے چلے جاؤ، کیسے کیسی صعوبتوں سے لوگوں کو گزرنا پڑا تھا. یہ ہیں کون؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبیدہ بن جراح جب لشکر اسلامی کو لے کر کے چلے جنگ کے لیے تو راستہ میں سمندر پڑ جاتا ہے. لوگوں نے عرض کیا، اے امین الامت عبیدہ بن جراح، سمندر کو کیسے پار کیا جائے؟ اتنی بڑی ہم کشتی بھی نہیں بنا سکتے ہیں، اتنے بھاری سمندر کے پھاٹ کو ہم تیر کر کے بھی نہیں پار کر سکتے ہیں. تو حضرت عبیدہ بن جراح کا جوش ایمانی ملاحظہ فرماؤ. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیتے ہیں، ان کے پیچھے سارے صحابہ ڈال دیتے ہیں، سارے مجاہدین ڈال دیتے ہیں، گھوڑے تیرتے چلے جا رہے ہیں، ان کی تلواریں فضا میں بلند ہیں، لہرا رہے ہیں اپنی تلواروں کا. دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یہ تمہارا جوہر تھا، بحر ظلمات میں گھوڑوں کو رسول اللہ کے صحابہ نے دوڑایا ہے. تب سے ہوئی افریقہ کی صحراؤں میں اذان رسول اللہ کے شہدائیوں نے دیا ہے. ذرا اس تاریخ کو پڑھو اور اس تاریخ کو سامنے رکھو. یہ رسول اللہ کے شہدائی ہیں، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہیں. حضرت امیر معاویہ رسول اللہ کے شہدائی، رسول کونین کے صحابی ہیں. آپ ان کی جنگوں کو دیکھیں، ان کے تدبر کو دیکھیں. امیر معاویہ کوئی معمولی سیاستدان نہیں تھے. حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی سلطنت کے کاموں کو انجام دینے والے حکمراں نہیں تھے. حضرت معاویہ کا حال تو یہ تھا پیارے، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک مسئلہ پیش کیا جاتا ہے. بڑا اہم مسئلہ تھا. وہ مسئلہ یہ تھا کہ امام حسن کو اتنے درہم و دینار پیش کیے جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی درہم پیش کرنے کے لیے، جتنا طے تھا کہ وظیفے کے طور پر امام حسن کو بھیجا جائے گا. حضرت امام حسن سوچ رہے تھے کہ ان کے پاس میں خط لکھوں، لیکن آپ نے خط نہیں لکھا. رات میں سوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے. فرمائے بیٹا اپنی ضرورت کو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرو، تم یہ دعا پڑھو. جب حضرت امام حسن اٹھتے ہیں تو ان کی زبان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب میں دعا بتا دیا تھا وہ دعا جاری ہے. امام حسن فرماتے ہیں کہ جیسے میں نے چند دن اس دعا کا ورد کیا، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے وظیفے کی رقم آ گئی. آپ ذرا ملاحظہ فرماؤ، حضرت امیر معاویہ حضرت امام حسن کو وظائف بھیجا کرتے تھے، کوئی تکلیف نہ ہونے پائے. ازواج مطہرات کو وظائف بھیجا کرتے تھے. سرکار کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت عثمان غنی کے قتل میں ان قاتلوں سے قصاص لینے کے معاملات میں حضرت امیر معاویہ ہی کے طرف تھی، اور اونٹ پر سوار ہو کر کے اسلامی مجاہدین کے ساتھ گئی بھی تھی. میرے آقا نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، میری بیویوں میں سے ایک بیوی جنگ میں جائیں گی، اوقات کے کتے بھونکیں گے. جیسے حضرت عائشہ بڑھی، اوقات کا مقام آیا، کتے بھونکنے لگے. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی یاد آ جاتی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو احترام اور عزت کے ساتھ مولا کائنات نے جنگ سے واپس کیا. اللہ اکبر، وہ حضرت امیر ہیں. امیر معاویہ کا ساتھ جنگ میں حضرت عائشہ دے رہی ہیں، دوسرے صحابہ دے رہے ہیں، اور صحابہ حضرت علی کا ساتھ دے رہے ہیں. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کا اجتہاد کا اختلاف تھا. وہ مولا کائنات اللہ اکبر جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی میدان میں پہنچے جس میدان کو کربلا کہا جاتا ہے. آپ کے لشکری ٹھہرے ہوئے ہیں. میدان کا جائزہ حضرت علی نے دیا، دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت علی اس کی مٹی کو اٹھاتے ہیں، زمین پر رکھ دیا. نشاندہی فرماتے ہیں کہ یہاں میرا حسین شہید کیا جائے گا، یہاں اس کے خیمے نصب کیے جائیں گے، یہاں اس کے اونٹ رہیں گے، یہاں جنگ ہوگی، یہاں تلوار چلے گی. کربلا کا سارا نقشہ ہونے والا بہت بعد میں ابھی ہے، اور صفین کے مقام سے واپسی کے بعد حضرت علی اس کی نشاندہی فرماتے چلے جا رہے ہیں. وہ حضرت علی کا علم ہے، وہ حضرت علی کا کشف ہے، یہ حضرت علی کی عظمت ہے. جب حضرت علی کی مقدس نگاہ کا عالم یہ ہے تو رسول اللہ کے نظر کرم کا عالم کیا ہوگا. اس لیے ان اصحاب کے اختلافات کا اجتہاد کا معاملہ ہے.
हमें और आपको सबका एहतराम करना जरूरी है, सबकी तकरीम हमारे और आपके लिए जरूरी है। यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि मेरे सहाबा को ला तसब्बहुम, उन सबको गाली ना देना, उन्हें बुरा न कहना, उन पर ज़बाने तान न खोलना। मेरे जितने सहाबा हैं सबके सब आदिल हैं, सबके सब जन्नती हैं। हजरत अमीर माविया सहाबी हैं, जन्नती हैं। हजरत अली जन्नतियों के सरदार हैं, रसूलुल्लाह के दामाद हैं। हजरत अमीर माविया रसूल कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के निकाह में आपकी बहन हजरत उम्मे हबीबा हैं, इसलिए उनको मोमिनीन का मामू कहा जाता है। कातिबे वही हैं, इसलिए उनको कातिबे वही कहा जाता है। सल्तनत में तदब्बुर रखने वाले हैं, इसलिए उनको अमीर कहा जाता है। और सल्तनत इस्लामिया के सबसे पहले बानी हजरत मुआविया हैं। हजरत मुआविया से सल्तनत शुरू हो गई, उससे पहले खिलाफत थी, उनको खुलफाए राशिदीन कहा जाता है। उनकी हुकूमत का दौर मिनहाज अलन नबूवत कहा जाता है, नबवी तौर तरीके पर हुक्मरानी करना। और हजरत अमीर माविया जब हुक्मरां हुए तो सल्तनत के तौर तरीके पर हुक्मरानी की जाती है, वहां से सल्तनत शुरू हो जाती है और यहीं से खिलाफत खत्म हो जाती है। रसूलुल्लाह ने फरमाया था, मैंने कल बयान किया था कि मेरे बाद 30 साल तक खिलाफत होगी और उसके बाद सल्तनत आ जाएगी। सल्तनत इस्लामिया के सबसे पहले बानी हजरत अमीर माविया हैं। हजरत अमीर माविया को सबसे पहले सल्तनत का बानी कहा जाता है। मैं इंशाअल्लाह जब 12वीं तकरीर करूंगा आपके इस स्टेज पर, तो खुलफाए बनो उमैया और खुलफाए बनो अब्बासिया की तारीख पेश करूंगा कि कत्ले इमाम हुसैन के बाद माहौल क्या होता है और कातलाने हुसैन का अंजाम क्या होता है। इसको जहन में रखे रहिएगा। 12वीं तकरीर खुलफाए अब्बासिया और खुलफाए बनो उमैया के ताल्लुक से होगी। हजरत अमीर माविया के बाद इनके खानदान में कितने बरस तक हुकूमत रही है और कैसे कैसे हुक्मरां रहे हैं, ये इंशाअल्लाह तारीख आपके सामने रखी जाएगी। यही हजरत अमीर माविया हैं। हजरत अमीर माविया ही के खानदान के हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के सामने किसी ने यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हो कह दिया था, तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने फरमाया इसको 25 कोड़े लगाए जाएं। उसको 25 कोड़ा लगाया गया था कि तूने यजीद को रदी अल्लाह ताला अन्हो क्यों कह दिया है। ये हजरत अमीर माविया के खानदान के हैं, हजरत अमीर माविया के क्या नाम खानदान के कहलाते हैं और आपके कबीले के कहे जाते हैं, जिनको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज कहा जाता है। खुलफाए बनो उमैया में सबसे अजीम खलीफा ये माने जाते हैं, जिनको 5वां खलीफा तस्लीम किया जाता है और जिन्होंने मिनहाज अलन नबूवत हुक्मरानी की थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी हजरत अमीर माविया ही के खानदान से हैं। तो हजरत अमीर माविया की मोहब्बत, हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सलामती, अल्लाह इन असहाब किराम से हमको और आपको मुस्तफीज फरमाए। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा अहले बैत के फज़ाइल, इसका बयान इंशाअल्लाह ताला कल होगा। कल अहले बैत के फज़ाइल पर आप 9:30 बजे ठीक आ जाएं, ताकि पुलिस से हमें परमिशन की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैं ठीक इंशाअल्लाह ताला जैसे आज बैठा हूं, ऐसे ही कल 9:30 बजे से बिला तमहीद अपना बयान शुरू कर दूंगा। कल इसी महफिल में आप फज़ाइल अहले बैत सुनने के लिए ठीक 9:30 बजे आ जाएं। ये महफिल नूर जिंदाबाद पाइंदाबाद। अब खड़े होकर सलाम पढ़ लीजिए।